25 कैंसिल, p square minus 6p equal to 0. Right here p square minus 6p equal to 0. Take p common, p minus 6 equal to 0. अब यहाँ से p की दो वैल्यू आएंगी, एक आएगा p equal to 0 and other is p equal to 6. Okay, the p equal to 6, p equal to 0. Now both a and b, the right option is c, both a and b. ये दोनों नहीं, क्योंकि ये दोनों ही राइट आंसर है. 6 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है. द राइट आंसर इज बोथ a and b. नेक्स्ट, if the origin is the midpoint of the line segment joined by the points 2, 3, xy, then the value of xy is, the origin is the midpoint. Okay, here is the point 2, 3, this is the xy and origin is the midpoint. Okay, now the value of xy, तो we know that 0, 0 कब आएगा, ये -2 और -3 होने पर ही इन दोनों का सम 0 होगा, मिड पॉइंट आएगा. नहीं तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं. x1 पर x2 by 2 इक्वल टू 0. यहाँ से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू -2. सेम 3 प्लस वाई या y प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0, y इक्वल टू -3. ये 0 कैंसिल, तो -2 and -3 is the right answer. The right option is -2, -3. Okay. The next, the four vertices of a parallelogram taken in the order -3, -1, a, b, 3, 3 and 4, 3. Then the a is to b. The ratio of the a to b is. This is a parallelogram. Now we know that the diagonals bisect each other. Bisect means O is the midpoint of these 2 points. Suppose A, B, C, D. O is the midpoint of AC as well as BD, both. Okay. So from the O is the midpoint of AC, the coordinates of O is equal to the coordinates of O. -3 plus 3 divided by 2, x1 plus x2 by 2, -1 plus 3 divided by 2, -1 plus 3 divided by 2. तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 0. 3 - 1 2 0 1. तो यानी यहाँ से कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे इसके, 0 1. सेम कोऑर्डिनेट्स ऑफ O फ्रॉम दिस साइड, a plus 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0. और दूसरा क्या होगा, b plus 3 by 2 इक्वल टू 1. Now a equal to -4 and b equal to 2 - 3 - 1. The a's to b ratio is 4:1. Minus minus cancel, 4:1. तो रेशियो क्या होगा, 1:4, 4:1, 1:2, 2:1. It is 4:1. Now question number 8. AOBC is a rectangle whose 3 vertices are 0, 3, 0, 0, 5, 0. And the length of the diagonal is, AOBC is a rectangle. The coordinates of A is 0, 3, O is 0, 0 origin and 5, 0. ये हमको निकालना लेंथ ऑफ द डायगोनल. तो जस्ट बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम या फिर डिस्टेंस फॉर्मूला से हम लोग क्या निकाल लेंगे, लेंथ ऑफ डायगोनल AB. नाउ AB इक्वल टू √5 minus 0 whole square, x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 using distance formula. It is 25 plus 9 √34. This is the distance of diagonal. 5, 3, √34, 4, it is √34. Now the next, the perpendicular bisect of the line segment joining the points A15 and B46 cuts the y-axis at. ये कह रहा है द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला y-axis को कहाँ काटेगा. देखिए पहले समझिए क्वेश्चन को, थोड़ा हॉट क्वेश्चन है एग्जाम्पलर से. दिस इज ए पॉइंट ऑफ 15. अगर यहाँ पर कहीं पॉइंट 15 है और दूसरा है 46, ये बी पॉइंट है और ये ए है. अब इसको ज्वाइन करेंगे
और इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीन्स जो इसको मिड पॉइंट पे 90 डिग्री पे काटेगा वो वाई एक्सिस को कहाँ काटेगा? सपोज ये पॉइंट हो गया 0y, दिस इज अ पॉइंट 0y। तो हमको निकालना है कि y कोऑर्डिनेट क्या है। तो हम लोग इसको ज्वाइन कर दें, ये क्या बनेगा? एक आइसोसेलेस ट्राइंगल। द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट, सपोज दिस पॉइंट इज P, तो PA इक्वल टू PB। हम लोग क्या लगाएंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला PA इक्वल टू PB, यानी PA स्क्वायर। अब स्क्वायर कर दें बोथ साइड्स, तो PA स्क्वायर क्या बनेगा? 0 माइनस 1 होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y, इट मीन्स y माइनस 5 होल स्क्वायर इक्वल टू PB 0 माइनस 4 होल स्क्वायर एंड y माइनस 6। नाउ सॉल्व, इट इज 1, y माइनस 5 होल स्क्वायर इज y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y इक्वल टू 16 प्लस y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36। नाउ y स्क्वायर कैंसिल, इट इज 26 माइनस 10y माइनस 12y इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस 12y। हियर इज 36 प्लस 16 माइनस 26, 25 प्लस 1 26, इट इज 26, 26 10 is 26, here is the 2y, it means y equal to 30. The coordinates of P is 0 13. Okay, now see the right option. The right option is 0 13. 0 minus 13 we need, 12 we need, 13 0 9. The question number 10, a circle drawn with origin as a center passes through 13/2 0, the point which does not lie in the interior of the circle. अब हमको देखना है कि इनमें से कौन सा पॉइंट ऐसा है जो सर्किल के अंदर नहीं आएगा। ओके, ये भी थोड़ा सा हॉट टाइप का क्वेश्चन है। अब हमको देखना है कि इसकी रेडियस क्या है। तो ये कहाँ, ये यहाँ से कितनी डिस्टेंस निकलेगी? 13/2 0 लेंगे तो द रेडियस इज 6.5 यूनिट्स। ओके, अब देखना है किसकी वैल्यू, किसकी डिस्टेंस 0 0 से 6.5 से कम होगी तो वो इंटीरियर होगा और ज़्यादा होगी वो एक्सटीरियर होगा। अब देखते हैं कि कौन सा पॉइंट इसके अंदर लाई नहीं करता है। अंदर यानी बाहर लाई करता है, अंदर नहीं करेगा तो बाहर करेगा। देखिए, या सर्कल पर करेगा, अंदर तो नहीं करेगा। हम फर्स्ट पॉइंट से डिस्टेंस निकालेंगे ओरिजिन की, तो वी नो दैट द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट दिस। तो पहले पॉइंट का क्या हो जाएगा? -3/4 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इट इज 9/16 प्लस 1, इट इज अंडर रूट 25/16, इट इज 5/4, यानी डिस्टेंस इज अप्रॉक्स 1.2, अप्रॉक्स मीन्स 1.25। ये तो इंटीरियर में ही आएगा। सेकेंड, 2 स्क्वायर प्लस 7/3 होल स्क्वायर, इट इज 4 प्लस 49/9, 36 प्लस 49 अंडर रूट 85/9। अब देखिए अप्रोक्स लिख लेते हैं, ये 9 9 81 है, 9 पॉइंट समथिंग आएगा और डिवाइडेड बाई 9 आएगा, यानी 1 पॉइंट समथिंग, यानी ये पॉइंट भी क्या होगा? इंटीरियर। जैसे ये इंटीरियर है, ये भी इंटीरियर ही होगा। थर्ड 5 -1/2 अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस -1/2 होल स्क्वायर, इट इज 25 प्लस 1/4 अंडर रूट। देखिए ये हो गया 101/4। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये अप्रॉक्स 10 पॉइंट कुछ होगा डिवाइडेड बाई 4, और जैसे ही 10.4 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो इट इज 2.5। तो ये भी कहाँ होगा? इंटीरियर में ही होगा, क्योंकि ये इसका भी रेडियस कितनी, ये कितना आ रहा है पॉइंट, कितना दूर है ओरिजिन से? 2.5। नेक्स्ट लास्ट इज -6 5/2, -6 होल स्क्वायर प्लस, हम लोग क्या कर रहे हैं? ओरिजिन से सभी की पॉइंट्स की डिस्टेंस देख रहे हैं। इट इज 36 प्लस 25/4,
It is 144 plus 25 by 4. It is 169. It means 13 by 2. It is equal to the radius. It means this point lie on the circle. The point -6, 5 by 2 lie on the circle. It means this point doesn't lie interior of the circle. यानी -6, 5 by 2 इसके अंदर नहीं आएगा. ये कहाँ आएगा? सर्कल पर, क्योंकि इसकी भी डिस्टेंस 6.5 ही है. तो राइट ऑप्शन क्या हो गया? -6, 5 by 2. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. If the distance between the points 4p, 1, 0 is 5, then the value of p is. यहाँ सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे. 1 - 4 होल स्क्वायर प्लस 0 - p होल स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर. It is 9 plus p square equal to 25. It means p square equal to 16. Then p equal to plus minus 4. दोनों वैल्यू होंगी. The distance between the point, then the value of p is plus minus 4. Okay. Next question. Next, the perimeter of the triangle 0, 4, 0, 0, 3, 0 is. ठीक है, इसको बना के दिखाते हैं. Now the triangle is the point 0, 0, 0, 4, 0, 4 here and it is 3, 0. ठीक है. अब पेरीमीटर निकाल लिए हैं तो ये डिस्टेंस कितना यूनिट हुआ? 3 और ये हो गया 4. और पाइथागोरस थ्योरम से देखेंगे तो ये होगा 5. तो पेरीमीटर कितनी हो गई? 4 + 3 7 + 5 12 units. The perimeter of this triangle is 12 units. Now the right answer is 12. Okay. Next, the ratio in which x-axis divide the line segment joining points 4, 2, -3 and b 5, 6 is. Okay. The ratio. The point A is 2, -3 and B is 5, 6. और जो P पॉइंट है जो x एक्सिस को काटेगा तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x0. लेट द रेशियो इज k:1. रेशियो हम लोग लेते हैं k:1. तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट तो अननोन है, हमको y कोऑर्डिनेट से निकालना पड़ेगा. फॉर्मूला यूज करेंगे y = m1y2 + m2y1 by m1 + m2. It means 0. m1 is the ratio k y2 यानी 6k -3 k1 into -3 डिवाइडेड बाई k + 1. ये तो 0 में चला जाएगा. सिर्फ यहाँ से हमको क्या मिलेगा? 6k - 3 = 0. 6k = 3, k = 3/6 means 1/2. द रेशियो इज 1/2:1 को हम लोग क्या लिखते हैं? 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे में तो ये हो जाएगा 1:2. द रेशियो इज 3:5, 1:2, 2:1, 2:3 means 1:2. नेक्स्ट, इफ द पॉइंट CX3 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A26 and B52 in the ratio 2:1, then the value of x is. Okay. These are the points A26, B52 and CX3. M1 is to M2. The y using the formula of x, M1x2 plus M2x1 by M1 plus M2. M1x2 means 2 into 2 plus 1 into 5 by 2 plus 1. It means 4 plus 5, 9. 9 by 3 = 3. The value of x is equal to 3. The value of x equal to 4863. It is 3. Next question. The coordinates of the point where line x upon a plus y upon b equal to 7 intersects y axis are. देखिए कोई लाइन y एक्सिस पे काटेगी तो क्या होगा? उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा. जब भी y एक्सिस को काटती है x कोऑर्डिनेट 0, यानी x कोऑर्डिनेट 0 मीन्स पुट x = 0.
अगर x इक्वल टू 0 डालेंगे तो y अपॉन बी इक्वल टू 7, y इक्वल टू 7b। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 0 7b, a 0 0 इट इज 0 7b। ठीक है, क्योंकि y एक्सिस को जहां भी कटेगा वो x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a 0 7 एंड b 0 -3 इज। देखिए तो ओरिजिन से 0 7 कहाँ आएगा, y एक्सिस पे 7 यूनिट ऊपर है और ये 3 यूनिट नीचे है, तो दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस हो जाएगा 10 यूनिट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द एंड पॉइंट्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्किल आर 2 4 -3 -1, द रेडियस ऑफ द सर्किल इज। अब हमको क्या निकालनी है इसकी रेडियस। देखिए इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे 2 4 -3 -1, तो हमको क्या मिलेगा डायमीटर, और डायमीटर को हाफ कर देंगे तो हो जाएगी रेडियस। चलिए पहले डायमीटर ही निकलेगा, x2 - x1 होल स्क्वायर, y2 - y होल स्क्वायर, इट इज -5 स्क्वायर इज 25 प्लस 25, it is root 50. Root 50 means 5 root 2. Now the radius is 5 root 2 by 2. भाई डायमीटर 5 रूट 2 है तो रेडियस क्या हो जाएगी 5 रूट 2 by 2। 4 ऑप्शन है, 5 रूट 2 by 2, वैसे तो यही राइट ऑप्शन है। 5 रूट 2 नहीं, 3 रूट 2 नहीं, प्लस माइनस 5 रूट 2 by 2 ये भी नहीं, क्योंकि रेडियस कभी भी माइनस नहीं होती है, प्लस होती है। Next, the distance between the lines 2x plus 4 equal to 0 and x minus 5 equal to 0 is, देखिए 2x plus 4 equal to 0 and x minus 5 equal to 0। देखिए यहाँ से x निकलेगा 5 और यहाँ से x कितना निकलेगा x equal to -2। ठीक है, the distance between the two lines, अब आपको पता है x इक्वल टू 5 का ग्राफ कहाँ बनेगा 1 2 3 4 5, ये है x इक्वल टू 5, और x इक्वल टू -2 किधर बनेगा, ये ओरिजिन है -1 -2, ये बनेगा यहाँ पर x इक्वल टू -2। अब इन दोनों लाइन के बीच में डिस्टेंस कितना दिख रहा है 2 + 5 7 यूनिट्स। द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन्स इज 7 यूनिट्स। दिख रहा है 2 इधर 5 इधर। The right answer is 9 units, 1 unit, 5 units, 7 units. Next, the centroid of a triangle divides each median in the ratio 2:1. Centroid जानते हैं जहाँ तीनों मीडियंस मिलते हैं, ये इसका मीडियन है, ये मीडियन और ये मीडियन, हमेशा किस रेशियो में काटता है 2:1। ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन, द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल फॉर्म बाय द पॉइंट्स PAB, QBC and RCA is at the origin. What is the value of A plus B plus C? देखिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड क्या होते हैं x1 plus x2 plus x3 by 3 and y1 plus y2 plus y3 divided by 3. These are the coordinates of centroid. अब यहाँ पर देखिए x1 x2 क्या है A plus B plus C by 3, और दूसरा भी यही होगा A plus B plus C by 3। लेकिन ये क्या है सेंट्रोइड हमको क्या दिया हुआ है ओरिजिन, यानी 0 0, तो इसका मतलब क्या हो गया A plus B plus C by 3 equal to 0। इट मीन्स A plus B plus C equal to 0। Now the what is the value of A plus B plus C is equal to 0। Okay, thank you।